Guys, welcome back to my channel. So in last video we studied about in something that had heat transfer, the meaning, definition of heat transfer, types of heat transfer, which included conduction, convection, radiation, and how conduction, convection varied in solid, liquids as well as gases. What were their properties? So today we are going to continue with the fundamental laws. So yesterday, like in the last video, as we learned about Fourier's law of heat conduction, which was given by Q is directly proportional to A dt by dx. So Q is equal to Ka dt by dx. So in that I explained why negative sign is added in this formula, and what is the thermal conductivity property with respect to solid, with respect to liquid, and with respect to gases. And there is some variation because of the relation of thermal conductivity with respect to temperature. So beta, what is beta? Beta is coefficient of expansion. So beta can be positive as well as negative. And today we will learn Newton's law of cooling. So what is Newton's law of cooling? तो एक थिन प्लेट लेना, एक थिन प्लेट, इसके सरफेस को देना Ts टेम्परेचर, एयर को देना एम्बिएंट टेम्परेचर है तो T इनफाइनाइट, और हीट फ्लो हो रहा है और एरिया कवर कर रहा है. यहाँ पर सरफेस टेम्परेचर इज ग्रेटर देन एम्बिएंट टेम्परेचर, सो इट इज़ गिवन बाय Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A Ts माइनस T इनफाइनाइट. जैसे कि हमने फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन में कांस्टेंट दिया कंडक्टिव रेजिस्टेंस, वैसे यहाँ पर कंडक्टिव हीट ट्रांसफ़र सो वैसे यहाँ पर देंगे कॉन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र विच इज़ गिवन बाय HA Ts माइनस T इनफाइनाइट. अब यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो हम लोग नोट नहीं करते न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के टाइम. सो सिखाते साइड बाय साइड मैं न्यूमेरिक आपको यूनिट्स बताऊंगा. सो Q इज इक्वल टू H इक्वल टू Q बाई A Ts माइनस T इनफाइनाइट. सो Q का यूनिट है वैट, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन और वैट पर मीटर स्क्वायर सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस. सो it is not a material property. It is an important thing that it is not a material property, whereas it depends upon geometric parameters, flow parameters, and fluid properties. Once again I will repeat: geometric parameters, flow parameters, and fluid properties. अब governing law of radiation. So governing law of radiation क्या बोलता है? EB is directly proportional to T raised to 4. अब देखते हैं definition. The emissive power of a black body is directly proportional to fourth power of its absolute temperature. Emissive power of black body is directly proportional to fourth power of its absolute temperature, which is further given as EB is equal to sigma, constant है, स्टीफेंस कांस्टेंट, इसका वैल्यू है 567 बीच में पॉइंट इंटू 10⁻⁻⁸ वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज़ टू 4. देखिए इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट केल्विन रेज़ टू 4 है, इसका यूनिट वैट पर मीटर स्क्वायर. यहाँ पर एक और चीज़ है, E इज इक्वल टू epsilon EB. So epsilon equal to emissive power of any other body upon ratio of emissive power of any other body to emissive power of black body. आपको बहुत सारे कॉलेजेस में थर्मल मतलब रेजिस्टेंस के टर्म्स में कंडक्टिव रेजिस्टेंस, कॉन्वेक्टिव रेजिस्टेंस सिखाया होगा, पर रेडिएटिव रेजिस्टेंस क्या होता है वो नहीं सिखाया होगा. सो ओम्स लॉ के हिसाब से dV/R
अब रेजिस्टेंस ढूंढते इसका, Q इज इक्वल टू सिग्मा ए कैपिटल F12 स्मॉल F12 T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर T1 स्क्वायर plus T2 square. Now many people will ask, hey, what's this capital F12 small f12? For now keep it aside, just remember capital F12 is called as shape factor, small f12 is called इंटरचेंज फैक्टर. मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ आपको फ़िलहाल कि शेप फैक्टर मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ट्रायंगुलर. अभी T1 स्क्वायर माइनस T1 ओके सो लेट्स कंटिन्यू. सिग्मा ए कैपिटल F12 स्मॉल F12, इसको ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी और T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर. सो Q 1 to 2 क्यों? क्योंकि टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T2. अगर T2 ग्रेटर देन T1 होता तो Q2 to 1. सो T1 माइनस T2 अपॉन 1 अपॉन सिग्मा ए कैपिटल F12 स्मॉल F12 T1 प्लस T2 T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर. सो दिस इज द रेडिएटिव थर्मल रेजिस्टेंस. ये कोई पूछेगा नहीं आपको, जस्ट फॉर नॉलेज. तो व्हाट इज Q? इट इज द ओवरऑल टेम्परेचर अपॉन रेजिस्टेंस. सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र. इसमें और एक लॉ आता है प्लैंक्स लॉ, पर जैसे कि मैंने कहा इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. सो now we will come with the actual concept. जो हीट ट्रांसफ़र स्टार्ट होता है, ये सब थर्मोडाइनमिक्स का पार्ट था. तो कंडक्शन. So as I explained you, what is conduction? It's a flow of higher energetic particles to lower energetic particles. सॉलिड्स में डिफ़र होता है बिकॉज ऑफ लैटिस वाइब्रेशन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. लिक्विड्स में डिफ़र होता है, गैसेस में डिफ़र होता है बिकॉज ऑफ डिफ्यूशन एंड कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो कंडक्शन. तो हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन से. आज मैं आपको सिर्फ डेरिवेशन सिखाऊंगा एंड टुमारो वी विल कंटिन्यू विथ रेस्ट, मतलब उसमें क्या क्या वेरिएशंस आते हैं और फिर न्यूमेरिकल्स. सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. पहले क्यूब बना लेते हैं, ध्यान से देखना. एक क्यूब बना लेते हैं. ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. अब इसमें हीट फ्लो हो रहा है यहाँ से विच इज़ गिवन बाय QX, यहाँ से बाहर आ रहा है विच इज़ गिवन बाय QX प्लस DX. ये सब एजम्पशंस हैं. यहाँ से Q फ्लो हो रहा है तो QY, यहाँ से बाहर आ रहा है QY प्लस DY, मतलब प्लस स्मॉल चेंज इन एन एलिमेंट इन द सेम पासिंग थ्रू द सेम, ये क्या बोलते हैं, वॉल. फिर QZ प्लस DS, ये QZ प्लस DZ. अब ये DY DZ. सो अभी क्या करने का, देख सिंपल फॉर्मूला है. सिंपल फॉर्मूला, व्हाट इज दैट सिंपल फॉर्मूला? heat transferred in all directions.
हीट ट्रांसफर्ड इन ऑल डायरेक्शंस, क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है इन ऑल डायरेक्शन, प्लस इंटरनल हीट जनरेशन, हीट ट्रांसफर हो रहा है, फिजिक्स में पढ़ा होगा, फोर्स है, फोर्स को अपोज करने के लिए इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, तो हीट को अपोज करने के लिए इंटरनल हीट जनरेशन इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपोज, और हीट फ्लो होने के टाइम क्या चेंजेस आते हैं एनर्जी में। सो अब चालू कर दे, तो एक एक हम लोग को ढूंढना है और फिर इक्वेशन बनाना है, सिंपल। सो वी विल टेक क्यू एक्स, इन टर्म्स ऑफ क्यू एक्स लेते और फिर अपना मैथमेटिक्स का फंडा सिमिलरली z y x dy dz qx। सो वॉल्यूम एलिमेंट क्या है, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट dv, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट dv which is given by dx into dy into dz। अभी in x direction, which is very important, heat entering क्या है, heat entering qx, तो q is equal to qx equal to minus k a dt by dx। सो a क्या है, एरिया qx पास हो रहा है, तो परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस जिसका एरिया है dy इंटू dz, perpendicular to this surface, so area is dy into dz qx dt by dx। Similarly heat leaving qx plus dx, so heat leaving qx plus dx, so क्या होगा, qx plus some change in that heat transfer which takes place with respect to x। देख qx plus some change which takes place with respect to that heat when heat is transferred from this surface to this surface with respect to dx। अब heat transferred within an element, what is that, dqx equal to qx minus qx plus dx। सो qx क्या है, ऐसे qx और ये qx प्लस dx है, इसको ऐसा लिखते, तो माइनस qx प्लस डी बाई डी एक्स qx dx, तो ये कटेगा, ये माइनस डी बाई डी एक्स क्यू एक्स डी एक्स। सो व्हाट इज क्यू एक्स, माइनस के डी वाई डी जेड डी टी बाई डी एक्स। सो तो क्या आएगा, डी क्यू एक्स माइनस प्लस के डी एक्स डी वाई डी जेड डी एक्स डी वाई डी जेड डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर। सिमिलरली डी क्यू वाई क्या आएगा, के डी एक्स डी वाई डी जेड डी स्क्वायर टी बाई डी वाई स्क्वायर, और डी क्यू जेड डी स्क्वायर टी बाई डी जेड स्क्वायर। देखो कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, हैंड राइटिंग प्लीज़ कोऑपरेट करना। सो अगला हीट ट्रांसफर्ड ढूंढ लिया इन ऑल डायरेक्शन। अब इंटरनल हीट जनरेशन, सो उसका फॉर्मूला क्या है, हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट। सो हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, क्यू जी इंटू डी एक्स डी वाई
dz और change in internal energy is equal to mc dt by d gamma। ये सब को ऐड करना और इक्वेशन बनेगा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इक्वेशन है। अब इसे आगे क्या करना है, इसमें क्या क्या वेरिएशंस आते हैं, दिस आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन, पीस आउट, स्टे सेफ।